خاص طور پر شب برات کے حوالے سے یہ بات ذہن کے اندر رکھیں، رات کون سی ہے؟ شب برات۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کام بانٹنے کا مطلب یہ بیان کیا کہ سال بھر میں جو کچھ ہوگا وہ سب لوح محفوظ سے لکھ دیا جاتا ہے، رزق، موت، حیات، بارش، یہاں تک کہ یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں حج کرے گا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مفسرین کرام کے ایک گروہ کا موقف یہ ہے کہ اس آیہ کریمہ میں لیلۃ مبارکہ یا برکت والی رات سے مراد شعبان کی 15ویں شب یعنی شب برات ہے، اور اسی رات میں یہ سب کام انجام پاتے ہیں، جیسا کہ احادیث نبویہ سے اس کی صراحت حاصل ہوتی ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس کے بارے میں کیا اللہ عز و جل نے لکھا ہے۔ انسان اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، کہیں بچے کی ولادت کی خوشی منائی جا رہی ہے، کہیں کیا ہو رہا ہے، لیکن اس خوشی منانے کے والے کو یہ خبر نہیں ہوتی کہ اس کا یا اس کے بچے کا نام آئندہ سال کے زندوں میں لکھا گیا ہے یا مردوں کی فہرست میں شامل کر دیا گیا ہے۔ شب برات کس اعتبار سے بخشش والی رات ہے اور کتنی بڑی رات، اس اعتبار سے کہ اس میں اللہ بخشش فرماتا ہے، اسے بھی سماعت فرمائیں۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے، اب کیا کرنا ہے؟ شب برات میں اسے غور سے سنیں، اچھی طرح سے دل و دماغ میں اسے نقش کر لیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو تم لوگ رات میں عبادت کرو، دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالی اس رات میں دن ڈوبنے کے وقت سے آسمانی دنیا پر تجلی رحمت کا نزول فرما کر یہ اعلان کرتا ہے۔ اب اعلان سنیں، خود میرا مولا آسمانی دنیا پر نزول اجلال فرما کر، میرا مولا غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک کون پکار رہا ہے؟ ساری دنیا کا پالنے والا پکارتا ہے، ساری کائنات کا پالنہار حقیقی پکارتا ہے، وہ پکارتا ہے جس کے دست قدرت میں سب کچھ ہے۔ اور جب وہ پکارتا ہے تو ایسا نہیں کہ صرف پکارا اور اگر اس کی پکار پر کسی نے لبیک کہہ دیا تو اس لبیک کہنے والے کو محروم کر دیا جاتا ہو، نہ دیا جاتا ہو، ایسا نہیں۔ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک یعنی سحری کے وقت کے ختم ہونے تک میرا مولا خود پکارتا ہے۔ قربان جائیے، کیا پکارتا ہے؟ اور پہلی پکار کس چیز کی ہوتی ہے؟ خدا را شب برات کی قدر کرو، شب برات کو ضائع کرنے سے بچو، شب برات نجات کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے کمر کس لو، من بنا لو کہ اس رات کو ضائع نہیں کریں گے بلکہ اس رات اللہ کی پکار پر لبیک کہیں گے۔ اور کیا اعلان کرتا ہے؟ خدا کی قسم اگر اس اعلان کو ہم سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر لبیک کہنے کے لیے ہر بندہ اپنا ایک ایک لمحہ اس وقت قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ پہلی پکار الا من مستغفر فاغفر له، پہلی پکار ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں؟ یہ اللہ فرماتا ہے کوئی بخشش کا طلبگار، ہے کوئی مجھ سے معافی کا طلبگار کہ مجھ سے بخشش مانگے اور میں اسے معاف کر دوں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، بخشش سے بڑھ کر کے کیا چیز ہو سکتی ہے؟ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیں کہ میرے لیے تسبیح بہتر ہے یا استغفار؟ میرے لیے
तस्बीह बेहतर है कि मैं सुबहान अल्लाह की कसरत करूं, या मेरे लिए यह बेहतर है कि मैं अस्तगफिरुल्लाह की कसरत करूं? तो इरशाद फरमाते हैं कि सुबहान अल्लाह खुशबू है। कपड़ा गंदा हो तो साबुन की जरूरत होती है, खुशबू की नहीं। कपड़ा गंदा हो तो साबुन की जरूरत होती है, खुशबू की नहीं। इसलिए पहले इस्तिगफार कर लो, जब गुनाहों से पाक हो जाओ तो सुबहान अल्लाह पढ़ते रहो। यानी कहीं भी आप जाकर देखें तो इस्तिगफार आपको नजर आएगा। हजरत इब्राहिम दुआ करते हैं तो रब्बना ग़फ़िरली, हुजूर से फरमाया गया वस्तग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात, हुजूर से फरमाया गया रब्बिग़फ़िर वरहम। आप अंदाजा लगाइए, ये मग़फ़िरत है। अल्लाह जानता है कि मग़फ़िरत कितनी अजीम चीज है, तो अपने बंदे ही से कहता है अला मिन मुस्तग़फ़िरिन फ़अग़फ़िर लहू, है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसको माफ कर दूं? अब ये हो ही नहीं सकता कि मौला वादा खिलाफी फरमाए। तो उस रात खूब अल्लाह से बख्शिश की भीख मांगो, मग़फ़िरत की भीख मांगो, इस्तिग़फ़ार की कसरत करो, बल्कि उससे पहले ही से अल्लाह की बारगाह में मग़फ़िरत की भीख मांगने के लिए तैयार हो जाओ और आदत बना लो इस्तिग़फ़ार की। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल क्या फरमाता है कोई मुझसे मग़फ़िरत का तलबगार कि मैं उसकी खताओं को माफ कर दूं। अल्लाह अकबर। जरा दामन पर निगाह डाल करके देखें कि कितना दामन गुनाहों से आलूदा है। तो उस रात सबसे ज्यादा जिस चीज की फिक्र करनी है वो इस्तिग़फ़ार की, मग़फ़िरत की फिक्र करनी है। फिर क्या फरमाता है अला मुस्तरज़िक़िन फ़अरज़ुक़हू, है कोई रिज़्क़ तलब करने वाला कि मैं उसे रोजी अता करूं। ये अल्लाह फरमाता है। ऐसा नहीं कि सब मिलकर रोजी मांगे तो उसका खजाना खत्म हो जाए, नहीं, उसके पास इतना है कि वो हमेशा से पाल रहा है और हमेशा तक पालता रहेगा, उसके खजाने में कोई कमी नहीं। तीसरी चीज वो फरमाता है अला मुब्तलन फ़अआफ़ी, है कोई परेशानी में गिरफ्तार कि मुझसे आफियत मांगे और मैं उसे आफियत अता कर दूं। आफियत बहुत बड़ी दौलत है। अल्लाह से आफियत का सवाल किया करो। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल आफ़ वल आफिया, आफियत बहुत बड़ी दौलत है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते अला मुब्तलन फ़अआफ़ी, है कोई इम्तिहान में गिरफ्तार कि मुझसे आफियत मांगे और मैं उसे आफियत अता करूं। अला कज़ा हक्का हत्ता यत्लुअल फज्र, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, परवरदिगार फरमाता है है कोई आफियत तलब करने वाला कि मैं उसे आफियत बख्शूं। और फिर है कोई ऐसा, ये कह करके अल्लाह ने फरमा दिया तुम जिस जिस तकलीफ और जिस जिस चीज के तलबगार हो घबराओ नहीं, आज की रात तो देने ही की है, तुम लेकर थक जाओगे, मैं दे करके कभी नहीं थक सकता। देने की रात है, मांगो जो चाहिए मांगो, जो चाहिए मांगो। तो माहे शाबानुल मुअज्जम की 15वीं शब मांगने में गुजारो, मांगने में कोताही ना करना। और वल्लाह मैं आपको बताता हूं, ये बात जहन में रखिए, अच्छी तरीके से रखिए, दुआ कसरत से किया करो। मैं एक छोटी सी बात अर्ज कर दूं, मेरा ये जुमला बड़ा मशहूर हुआ था। आदमी अपनी शिकायतें इसके दरवाजे पे जाके बयान करता है, अपनी परेशानियां इसके दरवाजे पर आधा घंटा बैठता है, सेठ ये परेशानी है, मैं इस तकलीफ में गिरफ्तार हूं, और फिर उसके पास रोता है। तो वो कहता है भाई मुख्तसर में बताओ यार, इतनी लंबी चौड़ी मत करो, क्या तकलीफ है। ऐसे ही होता है ना भाई, आप मुझे जवाब दें, ऐसा होता है या नहीं होता है ना। और कभी बहुत करीबी है तो इतनी लंबी सुनाता है, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। होता है या नहीं होता, मुझे जवाब दे। आज मैं समझाना चाहता हूं, एक बड़ा अजीम सबक सीख करके आज उठिए। होता है या नहीं होता। सबसे बहुत लंबी दास्तान सुनाते हैं, सबको अपनी तकलीफें एक एक करके बयान करते हैं, और जब रब की बारगाह में आ जाओ, खुदा के बंदो मेरा ये जुमला जहन में महफूज कर लो, और अगर आज से तुमने उस पर अमल किया, फकीर का वादा है इंशाअल्लाहुल अज़ीम मेरा मौला जरूर करम की नजर फरमाएगा इंशाअल्लाह। और वो क्या है, सबसे कम कहो, रब से ज्यादा कहो।
सबसे कम कहो, रब से ज्यादा कहो, इसलिए कि मेरा मौला ही है जो ये फरमाता है, अम्मन युजीबुल मुत्तर्र इज़ा दआ व यक्शिफु सू, कौन है जो बेकरार की फरियाद सुनता है और उसकी तकलीफ को दूर करता है, वो मेरा मौला है, वो मेरा परवरदिगार। मांगो उस रात, मांगने में बिल्कुल ये नहीं कि यार बहुत हो गया, नहीं, मांगते जाओ, मांगते जाओ। दुनिया के इंसानों से मांगो तो उसे बुरा लगता है, और खुदा से न मांगो तो वो नाराज हो जाता है। दुनिया के इंसान से मांगोगे, देकर एहसान जताएगा, और खुदा देगा तो कहेगा और चाहिए मैं तुझे अता करूं। लेकिन वहां हम भूल गए अल्लाह से मांगना, बिल्कुल भूल गए। हम जब नमाज के बाद लोगों को दुआ में देखते तो ऐसी हालत होती है कि अल-अयाज़ु बिल्लाह। खैर, तो आखिर में तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाकर एक हौसला अता कर दिया, अला कज़ा अला कज़ा अला कज़ा हत्ता यतलु अल फज्र, कि परवरदिगार जल्ल जलालहू फरमाता है ये जो कुछ भी इस तरह से जो भी मांगना है मांगो, यहां तक कि मौला फज्र की तुलू होने तक ये निदा फरमाता है, खुद नुज़ूल इजलाल फरमाकर अपने बंदों से पुकारता है। इससे बड़ी रात कौन सी होगी आप मुझे बताओ। इस रात को ज़ाय करने से बचो, इबादत में गुजारो। अब मुख्तसरन कुछ बातें अर्ज कर दूं ताकि आपके जहन में ये बात बैठ जाए और आप उसके लिए अच्छी तरीके से तैयार हो जाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजानुल मुबारक के अलावा सबसे ज्यादा किसी महीने के रोजे रखते तो वो शाबान के। अक्सर का इतलाक 3 पर होता है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मुसलसल रखा करते थे, जैसा कि आपने सुना, मिला भी दिया करते, कभी छोड़ भी दिया करते, इस तरीके से भी होता था। उलमा फरमाते हैं कि आप अगर पूरा महीना रोजा नहीं रख सकते शाबान का, फर्ज नहीं है, नफिल है, तो आप कम से कम 3 रोजे रख लो, 13, 14, 15 शाबान, तो अक्सरियत का इतलाक इसके ऊपर हो जाएगा। तो 13, 14, 15 रख लें। एक चीज, जब दफ्तर बंद हो तब भी रोजे से हो, और जब दफ्तर खुले तब भी रोजे से हो। इससे बढ़कर के सआदत की बात और क्या होगी। रात इबादत करके शबे बारात को जिंदा करो, इसी तरीके से तिलावत करके जिंदा करो, नफिल पढ़कर जिंदा करो, कज़ाए उम्री अदा करके जिंदा करो। और हमारे यहां तौबा के सिलसिले में एक चीज खास तौर पर है कि हम लोग जो तौबा करते हैं ना, तो दुआ करते हैं, लेकिन तौबा को कबूलियत के दर्जे तक पहुंचाने के लिए जो अमल बहुत जरूरी है वो ये है कि तौबा करने से पहले कुछ सदका कर दिया करो, कुछ सदका कर दो। इसीलिए आपको मालूम है कि मदीने मुनव्वरा में जब सरकार की बारगाह में हाजिरी के लिए जाएं तो पहले कुछ सदका करें और फिर हुजूर की बारगाह में हाजिरी के लिए जाएं। ये तरीका है। औलिया की बारगाह में भी जाएं तो पहले कुछ सदका करें, फिर उसका होगा क्या सदके से, जिस गरीब को आपने दिया ना उसका दिल खुश होगा। अब उसका दिल खुश करके तुम अल्लाह के वली, अल्लाह के नबी और परवरदिगार की बारगाह में जाओगे ना, इधर उसका दिल खुश हुआ, उधर तुम्हारा दिल खुश कर दिया जाएगा। लेकिन यहां जेब में हाथ डाले कौन? अपने जेब में तो हाथ जाता ही नहीं, हाथ दूसरे के जेब में चला जाए तो अलग चीज है। बड़ा अजीब मामला है, बड़ा अजीब मामला है। तो खैर इस चीज की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और अगर कोई ऐसा शख्स है कि देने की ताकत नहीं रखता तो फरमाया गया 2 रकात नफिल अदा करे, सलातु तौबा की नियत से पढ़कर फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करे। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस चीज को दूसरों तक भी पहुंचाएं और अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करने के लिए आप भी कोशिश करें और हम भी कोशिश करें। अल्लाह ताला रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल हम सब पर करम की खास नजर फरमाए, और जिन लोगों की अल्लाह अज़्ज़ व जल शबे बरात बख्शिश फरमाने वाला है उनमें हम सब का, सारी उम्मत का शुमार फरमा दे। अब एक पते की बात और बता दो, इस महीने को हुजूर ने अपना महीना क्यों फरमाया?
ایک وجہ یہ ہے کہ آیت درود جو ہے نا، یہ جو نازل ہوئی وہ اسی مہینے میں نازل ہوئی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. یہ آیت درود اسی مہینے میں نازل ہوئی. حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ لوگوں کو چاہیے کہ اعلیٰ حضرت کے معمول کو اپنے علاقے میں جاری کریں. پوچھا گیا حضور معمول کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت 14 شعبان کو اپنے محلے والوں کو سب کو جمع کرتے اور غروب آفتاب سے پہلے سب سے کہتے تم ایک دوسرے کو معاف کرو، تمہارا خدا تمہیں معاف کرے گا. اس لیے کہ اگر کسی کے سینے میں رائے کے دانے کے برابر بھی کسی مسلمان کے لیے کینہ ہے تو شب برات اس کی بخشش نہیں ہو سکتی.